ویلکم بیک جی ہاشمی صاحب، کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیں چودھری بڑی صاحب، زیادتی ہے آپ کی، چودھری صاحب پہلے آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ دیکھیں چودھری صاحب، میں نے پہلے تو آپ کی اس بات کا میں ذکر ضرور کروں گا کہ یہ پارٹی جمہوری بنیادوں پر اس کو استعمال کیا گیا ہے. 1 کروڑ ووٹوں کے ہاتھ میں اپنی قسمت ہم دے رہے ہیں لیڈرشپ. بگ نمبر. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ عمران خان ایک جو تنہا تھا وہ رہ نہیں سکتا. اس نے اس کو بدل دیا ہے جمہوریت کا اصل صورت میں، اصل شکل میں. اور اس واقعے کے بعد یہ تمام فیصلے Are you satisfied with the level of democratic بالکل بالکل within the party؟ آپ دیکھیں گے آپ مطمئن ہیں؟ میں مطمئن ہوں ریئلی. بلکہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، مگر راز کی بات یہ ہے کہ عمران خان کے اس الیکشن کرانے کے اندر شاید اس کی اور زیادہ کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، جاوید ہاشمی تھا. تو وہ اس لیے اب یہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے، بات یہ ہے کہ میرے خاندان میں بھی کبھی گالی نہیں دی گئی اور میں نے کوئی بھی غیر پارلیمانی لفظ، لیکن اس کا گریبان تو آپ نے پکڑا جو پاکستان کو گالی دیتا ہے. میں یہ بات ہے. اور اس میں جو میں نے جو سخت زبان استعمال کی کئی مرتبہ کی ہے. اب جو میں نے کی ہے، دیکھیے ایک تو جب ورکرز کے ساتھ ان کو پولیس سے پٹوایا جائے اور میں تقریر کر رہا ہوں، وہ ورکر روتا ہوا آئے تو میرا جذباتی ہونا قدرتی امر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی غیر پارلیمانی لفظ میں نے ایک بھی نہیں کہا. لیکن میں خود شادیاں نہیں میں نے سارے لاہور کو سارا بنانا نہیں لاہور تو میرا شہر ہے جہاں سے میں میاں نواز شریف سے بھی زیادہ، شہباز شریف سے بھی زیادہ پہلے الیکشن لڑ رہا ہوں. پہلے 77 کا الیکشن لڑ رہا ہوں. میں 74 کا میں نے مصطفیٰ کھر کے مقابلے پہ درخواست دے دی تھی 74-74 سے. تو اس میں مجھ سے زیادہ یہ تو بعد میں آئے ہیں لاہور میں کی سیاست میں تو یہاں تھا، میں تو جنگیں لڑی یہاں، ایک لاہور کے ایک چپے چپے جنگیں لڑی ہیں. لیکن میں یہ بات کر رہا تھا، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا. میں دیکھیں میں اگر صحیح نہیں، میں نے اگر آپ مخدوم بھی ہو جو میں اپنے آپ ان کو گالیاں کیوں دی ہیں؟ میں اپنے سٹینڈرڈ سے دیکھوں تو مجھے شرم آتی ہے. میں نے اس کے اوپر میں ہر ایک سے مدد کرنے کو بھی تیار ہوں. لیکن ان کو بھی لوگوں کے اوپر یہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. میں یوں تو کہہ رہا ہوں، جگہ یہاں پہ اسلام پورہ میں کیا ہے انہوں نے، اس کا ایک تھانے دار نے بندوق اٹھا کے کہا ایس پی کی موجودگی میں کہ ہمیں حکم ہے کہ تمہیں مار دیں. اس کی انکوائری تو کرائیں. اس کا میڈیا کے اس دور میں آپ کو نہیں پتا. میں اگر کل رات بھی اپنے گاؤں میں سو رہا تھا، مجھ سے 15-20 فٹ کے فاصلے پہ کلاشن کو والے جو بدماش ہیں وہ کھڑے کیے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ مائنڈ، میں تو ہوں اس کا سامنا کرتا ہوں. لیکن جب میرے ورکر پر اسی کی زیادتی ہوگی، آدمی نہیں ہے، ان کو کیوں کرا رہے ہیں یہ؟ ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کی انکوائری تو کر لو جو لاہور میں ہوا. یہ شہباز شریف نے تو پرویز لائی، مونس لائی جو رات دن ان کو بہت زیادہ حملے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف بھی انہوں نے کوئی آپ اگر پوچھنا چاہتے ہیں، وہ مجھے تو خود سے زبان سے ان کی صلح بھی ہوگی. لیکن ایک دن کے اندر جتنی تبدیلیاں کی انہوں نے کہ ان کو واپس جانا پڑا. یہ میں جاوید ہاشمی ہوں. میں آپ کو آپ کے اس موضوع پہ بات کروں گا، لمبی چلی جائے گی. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز لیگ کے خلاف میں نے کوئی چارج شیٹ نہیں کیا کرتا، نہ کروں گا. میں نے اپنی سیاست کی ہے، یہی کروں گا. البتہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ جس پارٹی کے اندر وہاں کے لوگوں کے اوپر فیملیوں کو مسلط کیا جائے، وہاں جمہوریت نہ ہو، ڈکٹیٹرشپ کا ایٹیچیوڈ ہو. آپ یہ فرق دیکھیں کہ یہاں میں آیا ہوں، 1 سال کے اندر جو مشاورت ہے میں نے یقیناً کبھی دیکھی نہیں ہے. اور وہاں میں 5 سال میں وقت مانگتا رہا. 15 منٹ میاں نواز شریف دے دیں، جاوید ہاشمی کے لیے 15 منٹ نہیں تھے.
सब ये समझते थे कि अब ये हम तो समझते थे कि आप 2-3 जो करीबी लोग हैं उनमें शामिल हैं। मैं तो ये रिकॉर्ड पे कह चुका हूँ, आज पहली दफा नहीं कह रहा। उसकी वजह से तो उनको खुद नुकसान होना है, उस पार्टी को नुकसान होना है, पाकिस्तान को नुकसान होना असल से है। ये जो मेरा ख्याल है 8-10 साल बाहर रहे ना, ये ग्राउंड रियलिटी से कट चुके हैं। वो बिल्कुल अलबत्ता कटते हैं। ये जरूर है कि शहबाज शरीफ अपने तौर पर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। नहीं, मैं आपसे अर्ज करूंगा, मैं तो सबका एहतराम करता हूं, मैं डिसऑनेस्ट किसी को नहीं कहता। मैं कहता हूं एक निजाम आपका जो है- जरदारी के खिलाफ क्या केस है अगर वो डिसऑनेस्ट नहीं है? मैं ये जो आप कहते हैं। मैं समझता हूं कि तमाम सियासतदानों ने इस मुल्क को लूटा है, वो जरदारी हो, वो हमारे पार्टी के लोग हों। मैं नाम एहतराम की वजह से नहीं लेता, लेकिन मुझे लेना चाहिए। मैंने एक बात की थी कि जिसका सरमाया बैरून मुल्क पड़ा है वो हलाल का भी है, हराम का भी है। पाकिस्तान को उसकी जरूरत है। हम आपको, मैं नहीं कहता तो आप आपका हलाल का नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की कमाई बाहर के बैंकों में रखे जाने के काबिल नहीं है, वहां फ्लैट्स खरीदने के काबिल नहीं है, यहाँ की मनी लॉन्ड्रिंग करके आप वहां बिजनेस करने के काबिल नहीं है। इस मुल्क को जरूरत है अपने सरमाए की। मैंने ये कहा है, ये अगर मुस्लिम लीग के खिलाफ जाता है तो जाता रहे, बिल्कुल ठीक है। जरदारी के खिलाफ जाता है जाए, इमरान खान के खिलाफ जाता है जाए, मेरे खिलाफ जाता असूल है पर जाए। चल रहे हैं ना, असूल पर कि चल- लूटा हुआ हो हाँ। या कमाया हुआ, हाँ, बाहर हाँ। रखने का कोई जवाब इधर ले आए, पैसा इधर ले आए, गरीबों के ऊपर लगाएं। गरीबों के माल है वो गरीबों की दौलत है वो। और ये जो चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, ये देखें, मैं तो बुनियादी तौर पर समझता हूं कि पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर ये हमेशा भुट्टो साहब के दौर में भी जजों को बहुत बड़ा कहा गया, लेकिन फिर भी वो एहतराम और था। अब तो ये बिल्कुल आप देख रहे हैं उनके मुख्तलिफ जो एंकर्स के सामने आकर डिस्कशन हो रही हैं, जैसे वो पकड़े जाते हैं। अजीब और गरीब एक तमाशा खड़ा किया हुआ है, तो उसमें पीपल्स पार्टी को उसका नुकसान होगा। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे उनको नुकसान चलो होता रहे, मैं तो उनका भी हमदर्द हूं, उन्हें भी नुकसान ना हो, लेकिन मुल्क को नुकसान हो। बिल्कुल। जो मुझे आपने शुरू में पूछा था, आज भी यही कहता हूं कि ये मुल्क का हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। सारे जो अदलिया को, अदारों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जमहूरियत को नहीं मान रहे, सिर्फ वोट लेने से कहना कि अब हम मालिक हो गए हैं मुल्क के, नहीं। जो वोट के साथ जिम्मेदारी है कि इस मुल्क की खिदमत करनी है, लोगों को उनके हकूक देने हैं, उनके साथ उनको कारोबार के अंदर, उनको जॉब्स के अंदर, नौजवानों को, खवातीन को एक हमने। और ये जो चमड़ी उधर रही है आम आदमी की, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना है। साहब ये फरमाएं, हमारा तो ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जो है 250 सीटों तक ले सकती है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और दोनों नवाज लीग और पीपल्स पार्टी और अदर्स हैव बीन डिस्क्रेडिटेड, और लोगों ने अपने वोट के ज़रिए इनको सज़ा देनी है। अब दूसरा नुक्ता नज़र जो उभरा है वो ये है कि तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों एक दूसरे के वोट काट रहे हैं, और जरदारी साहब दोबारा हुकूमत बनाएंगे। बहुत भी फ़र्क पड़ा तो नून लीग आगे होगी। आप क्या नक्शा देखते हैं, आपकी बसीरत क्या कहती है? चौधरी साहब, मैं तो लंबी बात नहीं करूंगा, आप अंदाजा कर लें, मैं 1 साल पहले तक मुस्लिम लीग नून में था। हम रात दिन कोशिश कर रहे थे, 5-4 साल हुकूमत में भी हो गए हैं, पंजाब की हुकूमत। सिर्फ पंजाब को देख लें, यहां लाहौर की दीवारों के बाहर मुस्लिम लीग नून खत्म हो जाती है। 3 सीटें दूसरी पार्टियों के पास हैं। कसूर में अभी तक कैंडिडेट हमें नहीं मिल रहे थे। इसी तरीके से उकाड़ा में हमें कैंडिडेट 5 सीटें पीपल्स पार्टी ले गई, हम कैंडिडेट हमें नहीं मिल रहे थे। 4 साल पहले की बात कर, और अभी यही सूरत है हाल है PMLN की। साहिवाल में 1 सीट के अलावा कैंडिडेट नहीं मिल रहे। खानेवाल और जंग में सारी खानेवाल में कोई मिल नहीं रहा, इनको कैंडिडेट हमें नहीं मिल रहे। मुल्तान के अंदर जो शहरी इलाके वो 2 सीटों के अलावा कैंडिडेट नहीं मिल रहे मुस्लिम लीग को। लोधरा में कैंडिडेट नहीं मिल रहे, मुजफ्फरगढ़ में 1 सीट भी नहीं है। सीट तो छोड़े, कैंडिडेट 4 साल की हुकूमत
चलाने के बावजूद कैंडिडेट नहीं मिल रहे। राजनपुर में वहां पे कैंडिडेट नहीं मिल रहे। लिया की तरफ बखर में एक दो इनके पास हैं, सरगोदा में एक है, और कैंडिडेट नहीं मिल रहे। खुशाब में और पीपल्स पार्टी ये पीपल्स पार्टी की भी यही सूरत हाल है, वो इससे बुरी हालत है, उसकी हालत मैं बहुत बुरी समझता हूं कि है। तहरीक इंसाफ ने पहले पीपल्स पार्टी का सियासी असर खत्म किया। पीपल्स पार्टी आप उसकी का बात है। खत्म कर दिया। सच्ची बात यह है कि इस वक्त इनको जब ये बात करते हैं, पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं। जरदारी साहब कहते फिरे, वो कुछ कह सकते हैं। मैं उनको जानता हूं, मैंने कहा था जरदारी को, इनको मैं अपने लीडरों को कहा था, मुस्लिम लीग वालों को, कि जरदारी को समझना है तो पीआईजी करनी पड़ेगी। मैं तो जरदारी के वालिद को भी जानता हूं, जरदारी साहब को भी जानता हूं, उसकी सियासत भी जानता हूं। हम तो ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के लोगों को आखिर में क्या कहेंगे, क्या मैसेज है, और मुल्क का मुस्तकबिल कैसा है देखिए, लफ्जों में? मैं ये समझता हूं कि ये जो पाकिस्तान के लिए आने वाले 5-6 महीने बहुत अहमियत के हामिल है। ये उन्होंने फैसले करने हैं। पहले करते रहे हैं वो मुख्तलिफ नारों पे, बातों पे, मगर अब हमें अपने मसाइल को, अपने आप को बैठ के पाकिस्तान के दुखों पर फैसले करने हैं। इसके लिए इन 4-5 महीनों में ही फैसले जो होंगे वो पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की बेहतरीन सलाहियों को उभारने के फैसले होंगे। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि दो पार्टियां जो 40 साल 50 साल से इक़्तिदार में हैं, उनको इक़्तिदार के अंदर पाकिस्तान को बेहतर नहीं कर सके तो उनको और 5 साल मत दें। इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ आपके दरवाजे पे आई है, आप इस साथ दें, बल्कि आप खुद तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। ये इक़्तिदार का दौर नहीं है, ये पाकिस्तान बचाने का वक्त है। इसके लिए आगे बढ़ें और पाकिस्तान को वो खुद बचाएं, और बचाने वाला कोई नहीं आएगा। हाशमी साहब, आपके ख्यालात लोगों तक पहुंच गए हैं, लेट देम डिसाइड। बहुत मेहरबानी आपके वक्त का और ख्यालात का। नाज़रीन, थैंक यू फॉर वाचिंग अस।